Yeah, good afternoon, Rajendra ji. Sir, this side Anantarao calling from Hyderabad. Yeah, good time to speak, sir. It's about? This is about, there is a post I have seen in LinkedIn regarding this one cure for all diseases. Just You give were me 2 mentioning minutes. something. 2 minutes. I'll call you in 2 minutes. Yes, no Is that problem. okay with you? Yeah, no problem, no problem. That's good. Hello. Yes. Sir, good time to speak Yes. to you, no, sir. Sir, nothing, sir. Actually, this is regarding your one of the posts that I have seen in LinkedIn. Yeah. So, wherein you were mentioning that through hydration, dehydration cycle Yes. and sleep, walk and rest, anything can be cured. This is the only big thing that to address. You told during. Yes. No problem. What is your issue? My issue is I'm having diabetes for the past couple of years, let's say for about 7-8 years from this. I was diagnosed in the year 2016 or something like that. It's been 8 to 9 years close to. And What now is your age? I'm 45. Height? Height 5.8 to close to 5.9. And your height, weight, and weight? Weight is 72, sir. All right. Yeah, it ranges from 72. Any changes in the weight? No changes in the weight as such now. But a few months back, since I was not into, I was somehow, ever since I am diagnosed diabetes, I have been taking medicines on and off. Means I doubt this English medicine basically. That is there in my thinking. So it's not good. It causes side effects also. That's why sometimes I take, sometimes I don't. This is how I've been treating. What is your average sugar reading these days? These days it ranges from, that's what I'm telling. I have to say something. 3 months back I was admitted in hospital. I'm admitted in hospital due to high sugar levels. That is around 510. It's way higher. So this is the first time I No, but why you got admitted? Who told you to get admitted at 510? You were having any symptoms like you were walking and other things were all right? Everything was all right. Actually, I was walking every day even then. But the only problem is I'm not taking medicines from the past couple of years. Let's say about 1.5 year, more than a year. I have stopped taking medicines. But I am following this walking in the morning. But my lifestyle is also a little poor in terms of the drinking. Yeah, usually I take 3 liters a day. 3 liters around. No. Drinking means about alcohol. No, I don't drink. I don't drink. I don't smoke at all. Okay. Yeah. What is your average meal? Tell me morning, evening, and breakfast. Afternoon. Morning, generally we are south, so dosa idli regular. We take dosa idli in the morning usually, and dosa, if it is dosa, I take even 3 or 4 also at home, and idli also ranging from 4 to 5, max 6. With chutney, and in the morning, afternoon, normal meals. Just a minute. Chutney is made of? Sorry? How do you make chutney? What are the ingredients in chutney? Ingredients is peanuts only, basically peanuts and that what you call curry patta and some, that palli chutney, right? Palli chutney, made of palli. No. How much is peanuts? Peanuts, मतलब डालते हैं सर, ऐसे हैंडफुल लेके 2-3 हैंडफुल लेके डाल के वो बनाते हैं पानी में. क्या और डोसा जो होता है उसमें कुछ मसाला भी होता है या प्लेन डोसा होता है? नहीं, प्लेन ही रहता है मोस्टली. दैट्स योर ब्रेकफास्ट. एंड व्हाट अबाउट लंच? लंच पे एक करी रहता, राइस और कर्ड राइस, थोड़ा चटनी, अचार कुछ ऐसे. कर्ड कितना होता है? कर्ड तो अच्छा ही रहता है, मतलब I take good amount of curd every day. How much is total in terms of grams? Grams बोले तो आपको more than 200 grams or something like that.
No, one 100. small bowl is also more than 200. So if you're taking once only, Once in the morning I take in the lunchtime, and night rarely I take. but morning and lunchtime you're taking curd also. Morning not morning, afternoon only, lunchtime only I take curd. Okay. Whenever you get an opportunity to measure, so just look at that. Anyway, coming back to you said rice and Rice and curry. vegetable, any one vegetable. Yeah, sometimes it is dal also, sometimes curry. How many Like times that. is dal? Dal is not necessarily that I take every day. Weekly, twice or thrice I take dal. And rest of the time it is vegetables. Vegetables or chicken, something in the weekends or something like How often you take non-veg? that. Per week, I think max 2 times, maximum max 2 times. 2 times or Even 2 days? two Means times. okay. Matlab, yeah, one day if I take bit lunch, dinner also will be the same chicken I take. So that is you counting that as 1 or 2? I'm counting that as one day. 1 One day. day on no, So yeah. so you're saying approximately twice in a week you take non-veg. Yeah, average, you can say And that. what is the quantity of non-veg that you will take in one meal? Around 100 to 150 grams. So How many that, pieces? 3, 4 like that. 3-4 pieces in one meal. Yeah, curry piece. It's small, not a huge piece. Then Each meal I take 3 yeah. or 4. Okay, and what about dinner? Dinner I take normally, sometimes I take ragi, matlab jowar roti. Sometimes I take normal meals. That is very rare. Meals I used to cut down in the nights basically. Sometimes if time doesn't permit, I'll take for lunch. Just a minute. How much do you take in dinner? Give me some idea. Average. Not on the day when you're taking less. Average is what? No. Average is hands क्वांटिटी तो हम राइस ज्यादा ही खाते, जब भी खाते हैं हम ज्यादा खाते हैं यहाँ साउथ इंडियन। तो राइस भी होता है और रागी भी होता है? नहीं इधर और इधर वो रहता, नहीं तो ये एक दिन वो या एक दिन। All right. And I have to say something. The moment I have admitted in the hospital, then I changed my diet to drastically, wherein chia seeds I am consuming, mixing with water in the night, soaking, and consuming in the morning. This has changed for about 2 months, I think. तब से ले रहा हूँ। और दूसरा change I made is nuts. There are certain nuts, selective nuts, which I am soaking throughout the day and taking as a meal in the night. That time I don't take rice or not chapati or any roti. What is your reading? Now I am getting somewhere close to 200, 250 post lunch, something like that. And before lunch, before meal? Before also 50 points would be here and there. Around 200? Around 200. Okay, now coming back to your understanding, what do you understand from diabetes? Like, what is diabetes? Diabetes is a chronic condition wherein the pancreas doesn't work because of the excessive insulin which is being produced. Okay. And because people are more, foodies nowadays, so it had to for digestion process, it has to release a lot of insulin, and sometimes it doesn't work. No. Just a minute. That is not diabetes. Diabetes is a metabolic syndrome. Okay. Metabolic syndrome means, let us say you consume 2,500 calories a day. That is the average a healthy person, adult, should consume. Yes. Out of this 2,500, almost 1,500 is used by your body internally. Your heart has to pump blood, it consumes energy. Your brain has to consume energy,
for managing your whole body. Your digestive Yes. system has to consume energy. So Yes. that's about 1500 calories. Okay, every day. Even if you don't walk also, this 15 is going to be burnt. This 15 is resting when you are lying down and sleeping. Oh, If you okay. lie Anyway, it will down be and consumed. sleep Yeah. all entire 24 hours, your body Ah, will use about 1500 calories. okay, okay. Now Got comes it. is whatever time you are spending working and whatever you're doing, walking, talking, seeing, Hmm. whatever is not your sleeping state, idle state, Okay, that takes about 1000 calories, right? okay, okay. Diabetes means that your body is not able to provide 1500 calories for your vital organs. That is diabetes. That Okay. is diabetes. Even though we are taking more than 2,500 calories You also, take but it's not for absorbing. you take 5000 also. Oh, So basic problem is not that your sugar is going up. okay. डायबिटीज अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का WHO का या किसी का भी तो दे बेसिकली दिस होल मेडिसिन सिस्टम इज अ फ्रॉड. Ah, WHO defines metabolic syndrome when you have three conditions out of five: BP, okay. sugar, high cholesterol, central obesity, or something similar. Fifth is also there, high cholesterol, High right? cholesterol. Okay. Out of these five, if you have three conditions, Ah, then you are supposed to be suffering from metabolic syndrome. then what about insulin resistance, sir? Just a minute. Yeah. Let's first talk about understand what diabetes is. Yeah, please. Now, when we are talking about, when I am saying ki WHO is also a fraud, Hmm. from this definition that out of five conditions, you have three conditions and then you are suffering from metabolic syndrome. Yeah. Why not two? Why not one? Why not four? Why not five? Because Hmm. what I have explained to you, this is a definition which a person can understand. Yeah. That your internal organs require certain energy and that energy is not made available to it. Yes, yes. Though we are taking 2,500 calories a day, still it is not Whatever available you're to the taking, vital whatever organs. I'm saying, Yeah. even if you take 10,000, still that 1500 is not met. Maybe you are overspending in your gym, in your activities or whatever. So Hmm. if you are walking for 1 hour, you are spending almost 300 calories. Okay, max 1 hour workout, it will only burn Workout means 300 you're walking calories. only, na? Yeah, walking or doing a gym or something. See, gym also is the similar, but if you do high intensity running or something, it might be maybe 1 or 2 calories here and there. Means Hmm. walking per minute is 5 calories per minute. If you're running or jogging, it may be 6. If you're running very fast, it could be 7, 8, 10 calories per minute. Yes, yes. Yes. So average you take gymming, you don't run, you just lift the weights and all that. Yeah, yeah. Mainly lift or stretching we Yeah. do. Yeah. So maybe somewhere close to 5, 6. So take an average because you have to work out something. Na? Average, you have to know some numbers. Yes, yes. So it need not be 100% accurate. Nobody can do 100% accurate calculations. So it's only rough Yes. estimate. So about 300 calories. How Hmm. your body will produce these 300 calories which you spend in walking or in gym or in any other place. Walking consumes energy. It does not produce energy. Yes. Energy is produced in your cells. Yeah, energy is produced in cells, right? So, how does walking or any other activity will help? They say that your sugar will come down. Okay, sugar will come down. Definitely, it will come down. Why it will come down? Because Yes. whatever is available in the blood will go in the cells. More will go in the cells, and it will produce energy. But ultimately, what is happening? Yes, sir. Your blood volume will shrink. Yeah. You will have certain other issues. The issue is that you don't have energy. If you spend that energy somewhere else, it has to somehow manage it. Yeah. So the idea is, and the worst part is, Hmm. your body produces more energy when the vital organs can get more energy. Now, immediate impact of this entire thing is that you have spent 300 calories in walking.
Maybe because blood circulation has gone up, more nutrients are delivered in the cells. Maybe your body will be able to produce 50, 100 calories extra, but it's Okay. still falling short by 200. Yeah. So your vital organs will not get 200. Now your cells produce energy based on what is the performance of your vital organs. Yes, sir. If your blood circulation is not good, obviously the energy will not be there. If the nutrients are not reaching the cells, obviously the energy will not be there. Yes, sir. So this misconception, there is nobody on this earth for the last 100, 200 or 500 years who has completely cured diabetes by walking or by running or by doing any other exercise. In spite of that, they will not let this narrative die down, that it doesn't help. Okay. End result is whatever you do, it'll worsen. Maybe you will see the changes after 6 months, maybe after 5 years. Now, other thing, they said that 3 out of these 5 will lead to metabolic syndrome, right? Yeah. If a person has diabetes, his chances of having high blood sugar is 50%. Okay. If you have diabetes and blood pressure, your chances of getting heart disease is very high. Okay. So it is something like this, that you have an infection in one finger, nail, Yes, sir. and they are saying that unless and until it has affected your entire arm, there is no need for any action. Yes, sir. So after it is spread throughout the arm, it will have to be cut out, Yeah. because one, you have deficiency of energy. What is blood sugar? Blood sugar, more glucose will get delivered to the cells and it will produce more energy. Yes. There is nobody on this earth whose blood sugar is constant entire life. It changes every second, It changes, sir. right? If you do Correct. check your blood sugar every 1 minute, even then there are changes. Sir. So why these changes? These changes according to the requirement of the energy of the body. Okay. When your body needs more energy, your vital organs need more energy, sugar will go up, it will be supplied to your cells, cells will produce energy and it will balance itself. Okay. So if you are doing something like walking or any other activity, what will happen? Instead of 5 years or 3 years, you will get your high blood pressure faster. Okay. So none of these, so far as the medicines are concerned, there is no medicine on the earth which claims that it will increase the metabolic rate. It will not increase the energy. Medicine. Energy, yeah. So if you look at what are the side effects of diabetes medicine, on top is fatigue and tiredness, less stamina. वो मैं महसूस करता हूँ सर, जब खाना खाने के बाद मेरे ऐसा लगता है कि एक गोली खा लिया मैंने, स्लीपिंग टैबलेट, ऐसा रहता मेरा सिचुएशन आफ्टरनून, और रात में वैसा नहीं रहता, लेकिन आप दोपहर तो ऐसा बहुत महसूस होता. मैं आपको सारा चीज क्लियर कर देता हूँ. सो nobody claims, I am not talking about your personal experience, even the manufacturer will not claim that it increases your energy levels. So if energy levels are not increasing and it's decreasing, the other angles are, most of the people who are diabetic for a long time, their erectile dysfunction starts. There a lot of other things start. Now what is erectile dysfunction is your blood supply to the penis is not there, is not strong enough. So all these things indicate your blood supply is reducing and your blood flow is reducing and your metabolic rate is going down. Yes, sir. So they are not helping you to manage or cure diabetes. They are helping you to become more and more sick so that you can die easily. Yeah. Okay, now coming back to what is the actual reason? Have you heard of Biswarup Roy Chaudhary? Biswarup, yeah, I heard of. Yes, I follow. What you have heard about him? Dip diet, fruit and salad. Yeah, mainly वो yes, morning पे सुबह में ये खाओ वो खाओ, उसका आश्रम में करता बोल के मैंने सुना. तो अगर आप कल 3-4 दिन पहले मैंने मेटा पर लिखा कि उसका जो डाइट है उसका रिजल्ट क्या है,
So it said Yes, sir. हाँ. that almost 57% people report reduced insulin dependence, हाँ. and more than 50% people can manage their sugar, or it goes into remission. There is no हाँ. blood sugar hike. More than 50% people. Okay. Some of the people who have taken this Biswarup Roy Chaudhary diet, they called me. Okay. They reported that this diet causes severe tiredness, and one of the guys who was aged about 50-55, he said that Okay. even if I am standing, I feel like I'll fall down. अरे. Right? There was another guy who was maybe 70-year-old. He said that because of his diet, for the last 6 months, I am on the bed. Oh, okay. Right? Now, coming back to why the blood sugar goes down in his diet. In spite Yeah. of dangers, there is one good thing, that blood sugar goes down. Okay. Now, I also did not know. अगर आप कुछ दिन पहले फोन करते तो मैं आपको हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट ही बोलता. Okay. Now, my blood sugar also increased about 15 days back. Your Yeah. will So, increased. Okay. yeah, it increased for the first time. Like so far, my age is 62, and even if I drink 2 liters of Coca-Cola, my blood sugar never used to cross 120 at any point of time. अच्छा. Oh. So even if I Earlier. earlier means maybe 3-4 months back. Okay. Even if I am taking half kg sweets or half kg mangoes, my blood sugar will never cross 120-130. अभी क्या हुआ सर अचानक आपको कुछ I was experimenting with severe dehydration. I was taking very less water. That was one. Second, I used to play sports in the evening for 2-3 hours. I stopped that completely. Okay. Sports. Okay. Now, but when I reflect back on this thing, there was time when I never walked, not within the house also, and did no activity, and I was Less all the movement time you are eating. saying. Yeah, less movement. Less movement, eating mindlessly. I did everything, and it never crossed. Okay. So these things were not responsible for increase in my blood sugar. I kept looking for answer. Okay. I live alone. Sorry, sir? I live alone. Acha, So I do my own cooking. You're married, right? Yeah, but I do my own Okay. cooking. So what happened is that just to make the things easier for me, I started depending on pulses. Pulses, okay. All the 3 times I will take rajma, maybe chickpeas, and maybe whatever. And Yeah. I never counted my proportion of the nutrients. Okay. I was just studying about various nutrients, and I was working on protein for some time, for 3-4 months. Okay. So usually people would say, what are the, because protein is very extremely hyped thing, that it is very good for the body, very essential. You should not miss protein and all that. So everybody will look for what are the symptoms of deficiency. I look for both. What are the symptoms of deficiency as well as what are the symptoms of excess. Okay. The excess symptom is bloating. Bloating. Yeah. And bloating is a common symptom in every chronic disease. Bloating is okay. Whether you have blood pressure, whether you have heart problem, whether you have diabetes, whether you have constipation, headache or anything, bloating is always there. Okay. Now the question is ki it is showing bloating one of the reasons for excess of protein. Okay. Even excess of protein is not advisable. That's what I'm coming to. So now it struck me after 2 days, I was just continuously thinking about what could be the real reason for increase in the blood sugar. Okay. So my recommended maybe protein is 100 grams per day. Mine must be going above 150 per day.
Okay. for a very long time, maybe for 3 years. Yes, sir. Now, after realizing and I was having continuous bloating and I was trying to manage bloating. Sometimes I'll take salt water, I'll increase my water intake, I'll do funny things. It will Okay. get managed, but again it will give a Mm. problem. Now understand what work due to hydration, dehydration, whatever excess protein was there, when I drink about 10, 15 glasses of water in a day, the excess gets Mm. drained out. Okay. Hydration, dehydration also tries to optimize the level of nutrients. Okay. But the thing is, I am doing it continuously for 3 years without even a break for one day. Is this hydration dehydration cycle? No, no, about this particular thing, excess protein. You're taking excess protein 3 years, Yeah, continuously without any break. like this rajma and using Yes, those. सुबह में, शाम में, दोपहर में सब. सब में यही, क्योंकि it is easier. I have arranged my cooking in such a way that it takes me only 5 minutes. Okay. Mostly soaking in the water and consuming directly. No, 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 no. Okay. I will boil it. Boiling does not Mm. take my time. Just put it in the pressure cooker, and I don't watch it or monitor it. Pressure cooker whistle will blow up, and then you just switch off the gas. Yeah, yeah. So once it's boiled, I keep the masala ready for 5 days or 3 days. Okay. Okay. So after it is boiled, I just add the masala and it's done. It's only 1 minute job. That's it. You consume the same for all rest of the 3 times, like. See, what I do is that since my quantity is less, if if I have to make for myself, for each meal I'll need just 50 grams, and it looks very funny or idiot, foolish kind of thing to cook only 50 grams. So I'll cook at least 200 to 250. Now I have to finish it So that also. you can use the rest of the day, like. Not only rest of the day, but matlab, the quantity is so less. If you like cooking for one meal only, it looks very. And otherwise also, if you boil the anything, any pulses, it will not. And you put it in the fridge after boiling, it will not get spoiled within few hours. Yeah, yeah, true. So just to manage the things, I was overeating all these stuff. Same thing you are doing. Really? What is dosa made of? It's carbs only, mainly. Think again. Rice. Think again. Made of pulses, no? Hmm? Pulses. Yes. उड़द की दाल. हाँ, उड़द की दाल. Okay. तो दोनों के दोनों उड़द का दाल इसमें भी जाता है और इडली में भी जाता है. बिल्कुल sir. दाल में भी वही है, चिकन में भी प्रोटीन है. हाँ. And हम maybe if you look कंदीपप्पू around. बोलते हैं. Okay. हाँ, उड़द दाल. Yes. Now question comes is, why does the sugar go down in the diet of Biswarup Roy Chaudhary? Fruits does not have any protein at all. Fruits doesn't have fruit. Yes. So what he is doing is They are fiber enriched. Forget about fiber and all that. What is the basic change? Fiber and all that you get from roti also, from dosa also. Everything has got fiber. Whatever is your daily requirement, you don't need to take fruits at all in life. Okay. Even if you're taking one serving of rajma, it has enough fiber for the entire day. Okay. So you are never short of fiber. Rather, you are always over consuming fiber also, because of the narrative is built up. Like you are having constipation, fiber, take fiber. You are having this, take fiber. Everywhere fiber. Yes. Fiber is not the real reason behind anything. Yeah. Now look at the protein. The latest research, which will continue undergoing. Because if you look at what are the side effects of excess fiber, and if you insist, keep on questioning that protein, what happens with the undigested protein? It damages your entire digestive system. Really? Yes. Okay. Undigested means protein is converted into amino acids. Okay, converted to amino acids. Right. Yeah. Undigested means if it is not converted into amino acids.
It stays Okay. in the intestines. It ferments, Undigested means it doesn't this convert into amino acids. con It does not get absorbed by in the blood. okay. It stays in the digestive system. Okay. It ferments. Ferments means like because of the heat of the body, it will kind of rot Oh my God. and it will Okay. produce gas. That undigested protein thing. Yeah, undigested protein especially. Yeah. It Got it, sir. will ferment and it will produce lot of gas. Yes. Even That we is, take dal also, it becomes protein, and it is if it is digested, okay. If it is undigested or some residues are left, it becomes yes, rotten and it will be shown as a bloating thing. yes. That is why bloating is the common factor in every disease. That means every disease is caused because of undigested protein only. It's need not necessary that one has to consume non-veg as a substitute for protein. Even veg people also can have protein through dal. Even in their case also, this conversion of the doesn't take place. It becomes undigested protein only, no? Yes, For vegetarians. yes. If your carbs remain undigested, it converts, it helps, it is beneficial. Even the carbs ferment when you take that in excess, but it is beneficial. It will do some better job. Compared to protein, you are saying. I am saying it is beneficial even. Leave aside the Yeah, side even effects. fermented Yes, carbs also is beneficial. yes. Okay. And the protein is very dangerous. Okay. This is dangerous because of it becomes amino acids, converts amino acids. See, the issue is that your carbs are absorbed in the body later or sooner. Even if it ferments, it releases the glucose. Glucose still reaches the blood. Okay. Maybe it will take more time. Okay. But protein does not get into the blood. It stays in the intestines. जो बैक्टीरिया होता है जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करता है वो उसी को डैमेज कर देता है. वहां पर वो जो ब्रेक डाउन होना होता है आपके खाने का डाइजेशन के लिए वो ब्रेक डाउन नहीं होने देता किसी भी चीज का. So फिर वो protein it does not get to my bloodstream because of that issue, amino acidic issue. So maybe what you are suggesting is you have to limit your protein intake. No, I am not coming to that. Okay. Now the issue is, go back to the Biswal Roy Chaudhary. Okay. His fruit diet reduced the blood sugar, caused another problem, weakness. Protein is very, very essential for the body, not for the वो muscle, fruit not दिन for the भर में muscle. पूरा बिल्कुल. ठीक है. Protein is necessary. 80% of the protein or amino acids are used by your brain and by your immune system. Okay. If you don't take sufficient protein, you'll have a lot of issues. The issue is, but the bigger issue is that it has to reach the blood. If your intestines are damaged, even if you're taking 500 gram of protein every day, it will not reach anywhere in the blood. So you are facing the same position. So first and foremost goal, you have to prioritize, you have to make a strategy. So what you do is, don't reduce your protein on a long-term basis. Reduce it for 2 days in a week. मतलब 2 दिन में कुछ नहीं खाने का प्रोटीन जैसे आइटम. Yes. Okay. And there is no need to take fruits. Look No for need to take. items which are very low on protein. Rice is very, very low on protein as compared to wheat. Okay. So maybe take rice. Okay. ये कुछ भी राइस हो सकता है, चाहे वो ब्राउन व्हाइट जो भी हो. No, white is better. White is better, huh? Yeah. But it increases as a GI as per glucose index. It increases, no, glycemic index. What is your basic issue? Your body do not produce enough energy for the vital organs. Yeah. So why should you make it more difficult for the body to produce energy? If the glycemic index is higher, it is better for you. Okay, so white rice you want me to consume then? See, is it logical what I am saying or not?
Got it, sir. Because anyway it is producing energy. White rice gives more energy, instant energy, but that dips immediately, no? As it grows within a few minutes, and then immediately you feel asleep because of that energy exhaustion. इतना भी नहीं है जितना आप बोल रहे हो. उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है व्हाइट और उसका ब्राउन का क्या डिफरेंस है? 90 का रहता है, 90 के आसपास में रहता है शायद, कुछ क्लोज टू 100 आई थिंक व्हाइट राइस ग्लाइसेमिक इंडेक्स. और वैसे आप गलत बोल रहे हो. आई विल रीचेक ऑन दिस थिंग. मैंने चेक नहीं किया इसको, टू बी फ्रैंक, बट माय अंडरस्टैंडिंग इज ओनली ग्लूकोज इज 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट? ग्लूकोज प्योर ग्लूकोज जो होता है वो 100 उसका जीआई होता है. और जो फ्रूट्स होते हैं उनका अराउंड 50 होता है. और जो व्हाइट ब्रेड होती है उसका 60 होता है. जो शुगर होती है, व्हाइट शुगर, टेबल शुगर होती है, उसका 72 होता है. ओ सॉरी उल्टा बोल दिया. व्हाइट ब्रेड का 72 होता है और शुगर का 60 होता है. शुगर का 60, ओके. जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 50-60 के करीब होता है, क्योंकि फ्रूट में 50% फ्रक्टोज होता है, 50% ग्लूकोज होता है. तो ग्लूकोज हो गया 100, फ्रक्टोज हो गया 50, फ्रक्टोज का होता है 20. तो 100 + 20 is 120 divided by 2 is 60. So ये जो भी कहानी करते हैं बिसुर रॉय चौधरी एंड ऑल दैट, कि फ्रक्टोज की वजह से होता है, वो जो एक दिखाता है ना, एक एक्सपेरिमेंट करके कि ब्लड शुगर लिया, उसमें फ्रक्टोज ऐड किया या ग्लूकोज ऐड किया, इट शूट्स अप एंड ऑल दैट, दैट्स ऑल नॉनसेंस. योर ब्लड प्रेशर मॉनिटर reads only glucose, not fructose. Blood glucose monitor, you're saying? Yes, your blood glucose monitor monitors only glucose, not fructose. And in the videos which is testing, he is testing after adding glucose, not after adding fructose. Okay. So it will shoot up. Okay. अगर वो भी दिखाए तो वो shoot up हो जाएगा वैल्यू. देखो, मेरा कहना ये है कि बेसिकली आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो शॉर्ट बाउट्स ऑफ एनर्जी इज नॉट एन इशू, एंड इवन बिगर बाउट्स इज नॉट एन इशू. द इशू इज प्रोटीन. ओके. तो आपका जो राइस है उसमें जो व्हीट होता है, रोटी होता है, चाहे वो रागी बोलो या कुछ भी बोलो, उससे बहुत कम प्रोटीन होता है. व्हाइट राइस हो या ब्राउन राइस, जो भी हो, कम प्रोटीन रहता है उसमें. ये पूरा कार्ब्स का रहता है और एनर्जी देता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी इस्तेमाल करने. वो लॉन्ग चेन होता है, वो इतना भी जल्दी स्पाइक नहीं करता, शुगर की तरीके से स्पाइक नहीं करता. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में दोबारा चेक कर लेता हूँ उसका. लेकिन आप एक बार चेक कीजिए. मैं व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज वी आर फ्रॉम साउथ हैदराबाद, so we consume a lot of rice, and being a diabetic patient, I see it as a tablet to go for a good sleep. The moment I eat white rice, immediately it feels like keeping everything aside and sleeping for at least an hour or two. You might be eating white rice with the dal. दाल और सब्जी उस दिन जो भी पकाते हैं वो उनके हिसाब से रहता. So try to break down whether it is dal or sabji. Okay. So you might see the changes when it is dal and not on the days when it is sabji. Okay. So the real thing could be protein rather than anything else. प्रोटीन तो जब दाल रहेगा तब मुझे मुश्किल और लगना चाहिए, जैसे आप बता रहे. वो वेजिटेबल से खाए तो उस दिन थोड़ा कम अच्छा महसूस होना मुझे. मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ. डू इट फॉर 24 hours. टेक व्हाइट राइस and some sabji with it, maybe potato curry or something. Okay. Any sabji, na? There is no limitation. Any sabji, because most of the vegetables do not have any protein, and better still, whatever sabji you are going to use, check Google how much protein is there. Okay, protein is there. सब्जी में. हाँ, सब्जी में भी प्रोटीन होता है, पोटैटो में बहुत कम होता है. तो जो भी सब्जी लेंगे उसको मेजर कर ले कितना होता है. हाँ, जो कम रहता है वो कंज्यूम करने को बोल रहे हैं आप. यस. वो देख के. यस. तो 24 hours में you will feel your stomach is extremely light. Bloating is gone. And I am taking white rice with sabji
जो भी हो, चाहे वो three times in that 24 hours if I Yes. consume, Yes. all 3 times I take rice and with one curry. Yes. No dosa or रात में no roti or something. No. But be mindful of protein only, nothing else. Don't think about anything else, because if you think so many things, it might be confusing. Just focus Yes. on the protein intake for 3-4 days. But you are not suggesting any protein, no? You are saying is carbs and fiber in the And oil. vegetables. And oil. Oil gives you a हाँ. lot of energy. Oil should be used in abundance. ऑयल ज्यादा रहना, वो कौन सी ऑयल इस्तेमाल करना सर? ये केमिकल बेस्ड रहता ना? कोई भी ऑयल कर लो. All oils are okay. अच्छा, तो ये भी ना दैट 150 रुपीज पर केजी वाला भी चलेगा? हाँ दौड़ेगा. मैं तो 120 केमिकल वाला वाला लेता हूँ. अच्छा है. राइस ब्रेन ऑयल लेता हूँ मैं. राइस ब्रेन, हाँ वही सर. राइस ब्रेन का वो जो है एक सर्वोत्तम करके है, वो जियो मार्ट पर 129 का मिलता है. कल शायद 127 का था. हाँ ओके. तो राइस ब्रांड तो हमारा इधर बहुत सारा ब्रांड्स है जो फेमस नोन ब्रांड्स, वो ले सकता हूँ तो फिर? हाँ, ये कोल्ड प्रेस्ड है 127 129 का. और कोई लेंगे तो 150 170 ऐसे मिलेगा. 120 में कोल्ड प्रेस्ड मिल रहा है आपको? यस. बहुत सस्ता पड़ रहा है सर आपको तो. हाँ, तो जियो मार्ट देखो, अगर आपके पास, आपके यहाँ पर जियो का स्टोर्स हैं तो वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, घर आ जाएगा. वो भी नहीं देना आपको. बल्कि आपको एक बार बताता हूँ, अगर जियो मार्ट है ना आपके पास, आई डोंट नो ओनियंस क्या रेट मिल रहा है. विद एवरी ऑर्डर ऑफ मोर देन 100 रुपीज यू गेट 1 kg ओनियन एट 5 रुपीज ओनली. अच्छा. वो जियो मार्ट में ऑफर चल रहा है शायद. ये 2 महीने से ऑफर चल रहा है. तो आप अगर एक भी जो लेंगे 120 रुपीज, मेरा क्वेश्चन है, ये आप जो इस्तेमाल कर रहे हो ऑयल 120 रुपीज, वो कोल्ड प्रेस्ड कैसे हो सकता है? हमारा इधर जो भी आप कोल्ड प्रेस्ड ले हो 300 से ज्यादा ही है, ऊपर है जो भी, चाहे वो राइस ब्रांड हो, ग्राउंडनट हो, जो भी. ऊपर का प्रिंटिंग भेजूं जिसमें लिखा हुआ है कोल्ड प्रेस, जो लिखे उसका हाइड्रोजनेटेड होता था, दैट यूज्ड टू कॉस्ट ओनली 80 रुपीज. और ये दिल्ली में आपका सेपरेट है? अच्छा. हाँ, ये अडानी ग्रुप का है. सर्वोत्तम. ओके, वो ब्रांड है सर? यस. मतलब उसके पैकेट के ऊपर सर्वोत्तम ऑयल लिखा होता है, राइस ब्रांड ऑयल. ओके ओके ओके. तो बिसाइड्स दैट यू कैन यूज लॉट ऑफ देसी घी ऑल्सो. हाँ, देसी घी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ. वो कर लीजिए. तो ऑयल यूज करिए, राइस लीजिए और करी लीजिए. और अबाउट कर्ड राइस एंड अचार अलोंग विद दिस? कर्ड नहीं लेना ना, कर्ड में वो बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है. ओ, ऐसे कर्ड भी बंद कर देना तो? एवरीथिंग विच इज मिल्क बेस्ड इज हैविंग लॉट ऑफ प्रोटीन. ओह माय गॉड. ओके ओके. तो मेरे कहने का मतलब है, मेरा डेली टी कॉफी तो 3-4 बार हो जाता मेरा डेली, वो उसमें मिल्क ऐड कर देते ना? चाय जो होती है, कैफीन जो होती है, वो आपके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को रोकती है. तो अगर आपका टी इंटेक ज्यादा है तो उसको कम कर दीजिए. तो बंद करना ही अच्छा है ना, जो वैसे ही बोलिए ना. कुछ दिनों के लिए तो बंद कर चाहे वो कॉफी हो या टी हो, मिल्क बेस्ड जो भी हो. इट इज नॉट मिल्क बेस्ड, इट इज कैफीन की वजह से बंद करना है. मिल्क की वजह से तो करना ही करना है. मिल्क तो पता नहीं कितना डालते हैं, पर अगर थोड़ा डालते हैं तो लेकिन उसमें भी प्रोटीन रहता ना सर? हाँ, रहता तो है, पर प्रोटीन को टच करना मना नहीं है. मतलब जैसे राइस है, राइस में भी प्रोटीन होता है पर बहुत कम होता है. इसीलिए. अच्छा, तो फिर पोटैटो में भी प्रोटीन होता है. हाँ बिल्कुल. तो ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी जो लोग खाते हैं उसमें पूरा ब्लैक ही है. उसमें कैफीन होता है ना, जो कैफीन होता है वो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है. हमारा पर्पस है न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करना. पीपल वर ट्रीटिंग दैट हैविंग ब्लैक कॉफी इन द मॉर्निंग एंड ब्लैक टी इन द मॉर्निंग वुड बूस्ट योर लिवर हेल्थ और समथिंग, बिकॉज देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ. मेडिकल साइंस का पूरी दुनिया के अंदर एक लाइन भी सही नहीं है. अब मैं आपको ब्लैक टी के हट के बताता हूँ. आप पूरे हिंदुस्तान में किसी न्यूट्रिएंट से इससे बात कर लो, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, ठीक है? यस सर. एवरीबडी विल से ओलिव ऑयल इज द बेस्ट. ओलिव ऑयल इज बेस्ट फॉर हार्ट. हाँ, वो तो कब से सुनते आ रहे हैं हम लोग. तो उसका मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कुछ.
पहली चीज, हाँ, जितना पूरी दुनिया में ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन है उससे डबल बिकता है, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 100% उसमें फेक होता है। अच्छा, मतलब वो देर एडल्ट्रेटेड यस। इनमें, यू वोंट गेट ऑब्वियस सी बात जेन्युइन है, ऑलिव। ऑब्वियस सी बात है कि जब पूरी दुनिया में जितना प्रोड्यूस होता है उससे डबल बिक रहा है, तो इसका मतलब 100% इज एडल्टेड। अगर 100 बिल्कुल बन रहा है तो बिल्कुल। 100 एडल्ट्रेशन की वजह से है। बिल्कुल, ऑन द नेम ऑफ ऑलिव आई थिंक पीपल कैन मेक मनी आल्सो, नाउ डेफिनेटली सेकंड दिस फैक्ट, इज ए ऑलिव ऑयल इज प्रोड्यूस्ड इन 5 कंट्रीज मेनली, इजराइल और जैसे, स्पेन एंड ऑल दैट। मुझे नहीं यस मालूम, सर। मेरे को दोबारा लिस्ट देखना पड़ेगा, बट आई डिड दिस पेपर अबाउट 6-7 मंथ बैक और 1 मंथ बैक, 1 year बैक। ओके, ओके सर। Now, when I was researching on olive oil, 5 countries are the main countries where olive oil is produced. अच्छा, इन 5 ओके। कंट्री में जिस कंट्री में सबसे ज्यादा ऑलिव ऑयल का कंजम्पशन है उसमें हार्ट डिसीज सबसे ज्यादा है। ओह माय गुडनेस। सो व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ? Then there must be something we have to doubt about this oil. एवरीथिंग इज सोल्ड लाइक दैट। नाउ किसको यू आर बिलीव फ्रॉम करे, साउथ इंडिया। कैसे फॉलो करे? तो फिर मेरा अभी जो मेरा एक मिनट, डायबिटीज है उसका आपको एड्रेस करना होगा सर। मैं वो आपको है दूसरा मेरा। बताता हूँ। आप साउथ इंडिया में हो, कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल के कितने चर्चे होते हैं कि इट इज सो गुड फॉर द स्किन, इट इज सो गुड फॉर एवरीथिंग। कोकोनट अभी ये वंडर क्रिएट कर रहा है बोल के भी बोल रहे, इधर नेचुरोपैथी का स्पेशलिस्ट बना दिया आजकल हमारा जगह अब मैं पे। आपको कोकोनट ऑयल का तो एक बताता से हूँ। बढ़ के एक के प्रमोट कर रहे हैं ऐसे चीज। सी देखिए, इट इज वेरी वेरी इजी टू गेट फॉलोअर्स इफ यू आर टॉकिंग व्हाट अदर पीपल आर आल्सो टॉकिंग, एंड एक दो चीज आप डिफरेंटली कर दो। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सारी चीजें उल्टा बोलता हूँ, हाँ, तो आई उल्टा गेट, मतलब जो 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 फैक्ट है वो बोल रहे हैं आप लोग। वो तो बोल रहा हूँ, पर फिर भी इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है कि लोगों का दिमाग जो होता है होनी वो काम दीजिए करना सर, बंद सर कर सर देता है। सर सर, यू आर फॉर पीपल, सो लेट इट बी, दे कैन थिंक वॉट एवर दे विश टू, या but we should not bother about it. Even the whole world comes against, we should not be scared of, या because सो you know the नाउ truth. now look at the coconut oil. Yes, So sir. eczema is incurable disease, psoriasis is Okay. incurable skin disease. हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई क्योर एक्जिमा विद इन 7 days। एक्जिमा मतलब वो कंडीशन स्किन क्या होता कंडीशन, है? स्किन, अच्छा अच्छा, ओके। सोरेसिस भी स्किन कंडीशन होता है और वो कभी ठीक सोरियासिस, नहीं हाँ होता, इनक्योरेबल है दोनों हाँ। एज पर मेडिकल साइंस। आप करेंगे कि क्या इज एक्जिमा क्योरेबल, तो यू विल गेट एन आंसर गूगल में भी कि इट इज इनक्योरेबल, और मेडिकल साइंस क्लेम भी नहीं करती कि ये क्योर हो सकता है। But you say you are in 5, if he is not medical dependent, it can be cured in विद इन 5 days. 7 days, इफ इज मेडिसिन हाँ, डिपेंडेंट इट मे टेक 2-3 months। but definitely eventually he is going to be cured, I think. हाँ हाँ, तो तो ऐसे ही इसमें भी है कुछ फॉर्मूले, जैसे मतलब मेरा जो कंडीशन है, जो हाई ग्लाइसेमिक, सॉरी हाउ डू यू से दैट, डायबिटीज, हाँ, हाँ, ग्लूकोज। तो बेसिकली क्या है कि मैं जो आपको बता रहा था कोकोनट ऑयल का, तो मेरे कुछ पेशेंट्स थे जिनका एक्जिमा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में जब मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, आई टेल देम नॉट टू यूज एनी ऑयल एट ऑल। ठीक है। ओके। अब लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम साउथ, दे विल से कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड फॉर द स्किन, तो ये आस्क्ड मी कि कोकोनट ऑयल लगा लूं। मैंने उसको मना किया कि कोकोनट ऑयल मत लगाना, हाँ, बट कीपिंग इन व्यू हिज ट्रेडिशनल थिंकिंग, ही यूज दैट। एंड केरला में सब ऐसे कोकोनट बहुत ज्यादा मिलता है, वो इस्तेमाल भी ऐसे ही करता सर। मैं आई बीन टू केरला एंड वंस आई ऑर्डर्ड डोसा, इट हैज कम विथ स्मेल ऑफ कोकोनट एंड आई कुड नॉट ईट। नॉर्थ तो में भी नहीं खा इमेजिन सकते। दे, हाँ, लेकिन नॉर्थ उसका में वो लेकिन उधर तो बोल रहे कि उसके हार्ट डिसीजेस कम रहता है उसका, जो कोकोनट कंज्यूम करता है, और कैंसर कम होता है। ऐसा भी एक स्टडी फ्लोट सरफेस हो रहा है इधर इंटरनेट पे। सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि स्टडीज फ्लोट होता रहता है, क्योंकि आप कुछ भी डिफरेंट बोलो, आप सिर्फ एक डिफरेंट चीज बोल लो, यू विल गेट लॉट ऑफ फॉलोअर्स। आप 100 चीजें बिल्कुल एक साथ उल्टे बोल दो तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा, पर एक चीज को बोल दो और उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करो तो पीपल विल ब्लाइंडली स्टार्ट फॉलोइंग यू। हाँ अभी ओनियंस होता है ना, हाँ
ओनियंस में थोड़ी देर के लिए अगर वो रह जाता है स्टोरेज में तो उसमें ब्लैक ब्लैक लेयर आ जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। समझा मैं, हाँ। तो कल परसों मैंने एक वीडियो देखा, उसका टाइटल यही हाँ था कि मतलब कुछ एग्जैक्टली नहीं याद किया है बट समथिंग लाइक दिस कि ये जो ब्लैक लेयर होती है ओनियंस के ऊपर, दिस इज अ डेडली बैक्टीरिया। दिस causes cancer also, I believe. इट सेड सो, राइट? I बट I studied it somewhere, I think. Yeah, that bacteria is not so good. सो ये क्या होता है कि अब आप कोई भी आदमी ओनियन खाता है तो उसने काले लेयर तो कभी ना कभी देखा ही होगा। How? अब जिसको भी Good. थोड़ा सा नॉलेज है यूट्यूब का, उसको मालूम है हाँ कि ये टाइटल में डाल दूंगा तो मेरे व्यूज मिलियंस में हो जाएंगे। हाँ। एवरीबडी कैन रिलेट टू दैट सिचुएशन ना। Yes sir, yes sir. तो जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा होगा कि अगर पहले तो लिखा होगा कि इट इज वेरी डेंजरस एंड ऑल दैट, इट इज वेरी हार्मफुल, फिर नीचे लिखा होगा उसको धोके यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो दे आर नॉट क्रिएटिंग एडिशनल हाइप, पर आपने नीचे तक तो पढ़ ही लिया, उसको तो व्यू मिलना था, वो तो मिल ही गया, हाँ, वो तो मिलते है। तो वो उसका अच्छा पैसा बन टाइटल गया ऐड ना। करना, एक अच्छा टाइटल ऐड करके डालने से इट इज आई कैचिंग हो जा रहा है, तो इमीडिएटली व्यूज बढ़ जा रहा है, उनका काम हो जा रहा है। तो बेसिकली जो कॉमन पार्लेंस में, कॉमन डे टू डे लाइफ में कोई चीज होती है जिसको लोग रिलेट कर सकते हैं, वो उसके बारे में कुछ भी सेंसेशनलाइज करके डाल देते हैं। वही वही जो चीज मोस्ट टॉक्ड अबाउट करके एक अच्छा टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल हो जाता। सो नाउ समझ कमिंग गए। बैक टू कोकोनट ऑयल, इट इज नो गुड देन एनी अदर ऑयल। देन कोकोनट ऑयल लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप सर में लगाओगे तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अच्छा, कोकोनट ऑयल सर पे हम करते हैं इधर साउथ में, तो बहुत करते हैं। सी इशू पता क्या रहता है कि किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को नहीं होती है, उसके कारण और न्यूट्रिशनल रीजंस होते हैं। ठीक है। अच्छा मैंने बुक लिखी है स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर, नहीं स्किन के अच्छा। ऊपर, हेयर के ऊपर और ब्रशिंग के ऊपर, टीथ ब्रशिंग, राइट? वो भी गलत है वो। अच्छा अच्छा। ब्रश करना ही नहीं चाहिए, टूथपेस्ट यूज ही नहीं करना चाहिए कभी। बिना टूथपेस्ट कर सकते हैं ब्रशिंग? आपको ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती, पर अगर फिर भी कई बार वो प्लेक वाइट वाइट जम जाता है ना, हाँ, तो उसको रिमूव येलो करना है। येलो। हाँ, हाँ येलो या व्हाइट जो प्लेट। होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लो विच इज वेरी वेरी सॉफ्ट जस्ट लाइक योर हेयर, ओके, आप उससे क्लीन अप कर लो डेली। बस चलेगा। हाँ बस, आप कोई भी और टूथपेस्ट यूज टंग करें। टंग भी यूज, यू डोंट हैव टू क्लीन द No, टंग एंड why ऑल। why do you need to clean the tongue? Clean is always moist. It has a lot of fluid. Whatever remains out of the food, it gives the signal to the brain what is needed for the digestion of that particular thing. ओके ओके, इसलिए तो एनिमल्स डजंट हैव ऑल दिस कंफर्ट, आई Brush. थिंक। Yes. गॉट इट गॉट इट। So coming दे back लिव to, हैप्पीली टिल देयर लास्ट ब्रेथ, आई थिंक। हाँ मतलब अगर हो सकता है कि मतलब एक्सीडेंटली खराब होता है क्योंकि उनको काटना पीटना पड़ता है, हड्डियों में भी चबाना पड़ता है, वो या तो सबको, वो कंडीशन सबको रहता है, वो हाँ, हम पर ऐसे कुछ नहीं होता कि प्लेट को हटाने के लिए वो कुछ ब्रश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो इस्तेमाल भी नहीं करते वो। अच्छा, बिल्कुल सर, So समझ गए। coming back to this कोकोनट। diabetes. कोकोनट, हाँ डायबिटीज सर। One of the things which is medical science supported is that you should drink lot of fluid so that you can pass most of the sugar in the urine. Now tell me one thing, if you drink lot of water, will your blood sugar go down or not? It has to. We assume that it will go down. It will go down to some extent for the time being at least. यस सर, इसलिए पीते हैं हम लोग ज्यादा, सुबह में से लेके रात तक। But if you drink more water, then more glucose will be passed on to the urine or less. If you drink very less, your blood sugar will be very very high. जितना ब्लड शुगर हाई होगा उतना ज्यादा आपका शुगर यूरिन में निकलेगा। ओके ओके। सो दैट क्लेम इज ऑल्सो रबिश। तो फिर क्या करना सर, वो वाटर? पानी नहीं पीने का।
मेरे तो डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन साइकिल कुछ बता रहे आप, जैसे एक वर्ड देखा वो इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये पानी पीने से भी इट इज गेटिंग क्यूर्ड, वो कैसे होता वो समझ सी, नहीं आया। देखिए पानी पीने से आपको डायबिटीज में कुछ फर्क नहीं पड़ता। डायबिटीज में एक जो फंडामेंटल रीजन होता है डायबिटीज का, वो होता हम्म, है कि आपका जो सेल होता है, उस सेल में हाँ, जितना पानी होना चाहिए उससे ज्यादा होता है, जिससे आपका ओके, मेटाबॉलिक रेट गिरता है, वो स्वेलअप कर जाता है। सेल के बाहर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। जब हाँ, सेल स्वेलअप कर जाता है तो जो रिसेप्टर है उसका साइज बड़ा हो जाता है और इंसुलिन वहां जाके चिपक नहीं पाता। तो फिर एक्सेस वाटर पीना ही बहुत गलत है ना तो। दैट इज व्हाट इट इज। दूसरा चीज ये है कि जैसे ही आपके ब्लड के अंदर किसी भी चीज का कंसंट्रेशन बढ़ता है या ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, हम्म, जब आपका हाईली वो होगा, ग्लूकोज होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जाकर इंसुलिन को जो सेल में घुसने की कोशिश करेगा या यूरिन के थ्रू निकलेगा, ठीक है। ओके, अगर आपका सेल यूरिन ज्यादा आ रहा है क्योंकि शुगर हाई है और उस शुगर को यूरिन के थ्रू निकालना है, ठीक है, हाँ, तो आपकी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी क्योंकि यूरिन जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड से बनता है। अच्छा, तो जब ब्लड से यूरिन बनता है तो ब्लड कम हो जाएगा। तो आपकी बॉडी की जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो होता है कि ब्लड की वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए। ओके, आपके ब्लड के अंदर टोटल बॉडी फ्लूइड का सिर्फ 10% होता है। ओके, 65% ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज देयर इन सेल्स। ओके, So keeping in view your weight, your body has more than 30 to 33 liters of water in the cells. Since you have ओके, diabetes, it could be even 40 liters. ओके, तो जैसे ही आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा, सेल्स पानी छोड़ हम्म, देगा। अभी हमें प्रॉब्लम क्या है कि सेल्स स्वेल्ड अप है, सेल्स में ज्यादा पानी है, और जितना शुगर हाई जाएगा उतना आपका यूरिन आउटपुट बढ़ेगा और उतना ज्यादा सेल्स पानी छोड़ेगा और उतनी तेजी से आपकी कंडीशन ठीक होगी। ओके, कमिंग बैक टू इंसुलिन, आप गूगल करके देखो कि जो मैन मेड इंसुलिन है, जो दवाई के फॉर्म में मिलता है, उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बड़ा है, ओके, तो वो इंसुलिन रिसेप्टर में लग जाता है। क्योंकि हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये भी है ना कि जब हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई तो हाँ, फिर इंसुलिन क्यों दे रहे हो? ओके, तो इंसुलिन वो जो दे रहे हैं, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उससे डिफरेंट है वो। हाँ, दैट इज वाई इट इज वर्किंग। ओके, सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, सेल स्वेलअप हो गए, सेल की स्वेलिंग कम करनी है, शुगर जितना ऊपर जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है, हाँ, उसके बाद वो ड्रॉप होगा। इसीलिए आप मेरे पहले पूछा कि आप 500 होने से 500 अबव आपको शुगर लेवल दिखाने से हॉस्पिटल को कैसे एडमिट हुआ, कौन एडमिट करने को बोला? सर लोगों का 600 चला जाता है, कुछ नहीं होता, कोई नहीं जाता हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल जाओगे तो 400 में भी एडमिट कर लेंगे, उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना। 400 तो बहुत बढ़िया बात है बोल के बोल रहे, वो परेशान हो जा रहे। मैं 500 से था और मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा, और वो हॉस्पिटल में इसीलिए एडमिट किया गया कि मेरा वाइफ इस घबरा के लेके गया। दे लेकिन वो बेसिकली मेड डॉक्टर यूज। मुझे और परेशान कर दे रहे, मेरे जी कर रहे तुम इधर तक कैसे पहुंच गए, तुम हॉस्पिटल तक खुद में गाड़ी चला के आया मेरा वाइफ के साथ रात में बेसिकली अपॉइंटमेंट ड्रामा, लेके। बेसिकली इतना ड्रामा करते हैं, कुछ कहने की बात नहीं। मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ, शुगर का। हाँ, 1 पर्सन कॉल्ड मी, हाँ, उसकी डॉटर थी सिर्फ 3 और 3.5 years की, ओके, एंड शी वॉज डायग्नोज्ड इन 1 month बिफोर विद द शुगर ऑफ विद इंसुलिन प्रॉब्लम। हाँ वो टाइप 1 का होगा टाइप शायद। 1 का था। हाँ, तो उसको दिन में 4 बार ही इंसुलिन दे रहे थे, ओ माय गॉड, बार बार चेक कर रहे थे। 3 साल की 3 लड़की साल को। बच्ची, हाँ, 3 साल, अच्छा, 4 बार इंसुलिन देने के बावजूद 600 से कम नहीं हो रही थी। ओ माय गॉड, ओके, तो जब उसने मुझे कॉल किया, मैंने उसको बोला कि आप इसका ब्लड शुगर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना, चेक करते रहना, क्योंकि विद इन 2-3 days इट विल फॉल डाउन टू बिलो 100 और बिलो 200। बिल्कुल, ओके, नोबडी बिलीव दैट। डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे हैं, इंसुलिन पर इंसुलिन दे रहे हैं, चेंज करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, इट वॉज नॉट गेटिंग मैनेज। अब इस बिल्कुल, लड़की का क्या कारण था डायबिटीज टाइप 1 का? शी वॉज ड्रिंकिंग 2 liters ऑफ वाटर मिनिमम एवरी डे। 3 साल बच्ची 2 लीटर ऑफ वाटर, यस। और मुझे कुछ बहुत नहीं ज्यादा करना है, था, मैंने सिर्फ ये बोला कि इसका पानी 400-500 ml से नीचे ले आओ पर डे, पर डे, पर डे का।
ओके। एंड दैट विल ब्रिंग डाउन। तो उसका फोन आया नेक्स्ट डे कि भाई बच्ची रो रही है, शी इज डिमांडिंग वाटर। मैंने कोई बात नहीं, एक दिन नहीं लगेगा, 3 दिन लग जाएगा ठीक होते हुए। हाँ इसका पानी बिल्कुल का बिल्कुल, आदत अभी, आदत रहना चाहिए। हाँ हाँ तो अभी आप 2 लीटर से 1 लीटर पर आ जाओ, 1200 पर आ जाओ। तो आप रिड्यूस करो, कल और रिड्यूस कर लेना, परसों और रिड्यूस कर लेना, ठीक हो जाएगा। आई थिंक इट वॉज बिल्कुल। सेकंड डे और थर्ड डे ब्लड शुगर केम टू 150। 160। 150। और फूड में कुछ चेंजेस है? खाली ये वाटर का कुछ नहीं है, 500 पानी, ml पर डे? पानी होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ सेल्फ डेवलप किए होते हैं और कुछ नहीं होता। अरे ये तो वंडर कर दिया ना सर आप। 150 विदाउट नहीं, मेडिसिन एक एंड केस नहीं है, फूड इंसुलिन फूड। वाले और भी केस हैं। आप इंसुलिन के केस में, एक और बच्चा था 10-11 साल का, उसका भी इंसुलिन डिपेंडेंसी हो गया था। तो उसका इंसुलिन डिपेंडेंसी के बाद में उसका जो वेट है वो 42 से कम होकर 31 पर आ गया था कुछ ही टाइम में। गिर गया उसका वेट। हाँ, उसका फ्लूइड मैनेज किया, पानी को कम किया उसका, तो विद इन 7 डेज इन वेट इंक्रीज बाई 7 kg। तो फिर अच्छा, ही इंक्रीज वेट आई थिंक। हाँ, उस बच्चे का वेट 42 था ना नॉर्मल, तो हाँ 31 बिल्कुल। पर आ गया था, तो 38 हो गया, तो काफी कवर हो गया ना विद इन 7 डेज। विद इन 7 days में कवर हो गया, वो तो ये वंडर है। एक हाँ और डायबिटिक पर्सन है, उसका हाँ। शायद मैंने नहीं डाला हुआ रिकॉर्डिंग, मैं बस सोचता रह गया, कुछ और काम में बिजी था मैं। तो दिस हाँ। गाय वाज एडिशनल डायरेक्टर इन आईटी कंपनी ओ सुपर। हाँ। एनसीआर में। तो दिस गाय वाज ओके डायबिटिक, हिज मदर वाज डायबिटिक एंड ही वाज सेइंग फैमिली हिस्ट्री है तो इसलिए डायबिटीज होगा ही होगा। तो हिज एज वाज अबाउट 32 और सो। ओके। ही वाज वेइंग 110 kg ओ माय गॉड। ओके। एंड ही सेड कि 110 भी थोड़ा पहले देखा था, अभी तो मुझे लगता है 115 हो गया है, तो लेट अस टेक 110। हाँ ही वॉज हार्डली ईटिंग एनीथिंग। ऑल आई सेड इज कि जितना खा रहे हो 110 kg वेट है, अगर 60 kg का आदमी 3-4 रोटी खाता है तो तुमको 6-7 खाना है। हम्म। कम खाने से वेट कम नहीं होगा, आपकी पानी उस मेटाबॉलिक रेट को मैनेज करने के लिए पानी से पानी स्टोर करती जाएगी। हाँ ओके ओके। तो आप तो जितना जितना खाओगे ज्यादा खाओगे उतना पानी भर जाएगा उतना अंदर पानी में, निकलेगा। निकलेगा बाहर। हाँ, तो उसका पानी का इंटेक कम किया, खाना बढ़ा दिया, शुगर भी बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया, किसी भी चीज का हाँ। रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा। 10 दिन में उसका वेट 15 किलो कम हो गया। ओ ओके। उसके बाद स्ट्रगल हुआ, उसके बाद नहीं कम हुआ। इनफैक्ट मेरा अपना कम नहीं हो रहा। तो बट द प्रॉब्लम इज कि जिसका बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है वो तो ऐसे ड्रॉप होता है, इतना तेजी से होता है कि मतलब एवरीबडी विल गेट शॉक। हाँ। मेरा कैसे कर देंगे सर आप? सर आपका तो वेट सब कुछ सही है, कुछ नहीं करना आपको, प्रोटीन छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, और हाँ। पानी को कम कर दो ड्रास्टिकली। आप 3 लीटर से ऊपर पी रहे हो, चाय कॉफी बंद कर दो। नहीं, एंड पानी कितना लूँ ले पर डे? खाने के साथ 1 गिलास ले लो, पूरे दिन में 3 गिलास ले लो 3 दिन के लिए। इट इज नॉट फॉर ऑलवेज, फूड इट इज ओनली फॉर 3 days। फूड वाइल टेकिंग फूड 1 glass, हम्म। और सुबह में दैट्स ऑल। 1 glass? हाँ। नहीं नहीं, दैट्स एम्प्टी ऑल, स्टमक? दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। पहले आपको 3 दिन खाने के साथ साथ लेना है। उसका खाली बेसिक, खाली ओके। उसके ओके। अलावा पानी और लिक्विड नहीं लेना। उसका बेसिक लॉजिक ये है कि आप खाने के साथ जो पानी लेंगे, क्योंकि जब आपका डायबिटीज है तो आपका ब्लड वॉल्यूम श्रिंक होता है। ओके। तो आप ये 3 गिलास पानी जो पियोगे, ब्लड वॉल्यूम आपका होगा करीब करीब 4.5 लीटर, 4.5 लीटर। ओके। तो कभी भी आपके ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा श्रिंक नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 300, 400, 500 ml तक श्रिंक करेगा। तो आप 3 गिलास भी लेंगे तो 800, 700, 800 लीटर ml हो गया। तो मोस्ट ऑफ दिस वाटर विल गेट एब्जॉर्ब इन द ब्लड, वो ब्लड के जो प्रॉब्लम है वो खत्म कर देगा। आप एक्सेस पानी नहीं लेंगे तो सेल्स जहां पर ज्यादा पानी है वो कम हो जाएगा। तो ये दोनों 24 आवर्स में मैच कर जाता है, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो फिर ऐसे डेली ऐसे फॉलो करना। नहीं नहीं, सिर्फ 3 दिन के बाद लिए, में सिर्फ 3 दिन के लिए। so first 3 days only 3 glass of water along with food, one यस, sip you are giving यस। first 3 days? हाँ, और हाँ। उसके अलावा वॉक एंड रेस्ट कर लीजिए, हर घंटे में 5 मिनट चल लीजिए, 5 मिनट लेट के आराम कर लीजिए। आप वर्किंग है या घर से काम करते हैं? वर्किंग सर, ऑफिस को जाना होगा। तो अगर ऑफिस का है तो आप ऐसा करो, सुबह उठकर 2 घंटे के लिए वॉक एंड रेस्ट कर लो। 2 घंटे में कंटिन्यूअस करना है, और उसका फॉर्मेट अलग होगा, 1 मिनट वॉक, 4 मिनट बेड रेस्ट। ओह, 1 minute walk, 1 minute bed rest? नहीं नहीं, 1 मिनट वॉक एंड 4 मिनट्स, 4 मिनट्स, 1:4? 1:4। ओके। 4 मिनट्स बेड रेस्ट करना है, और इसको कंटिन्यूअसली 2 घंटे सुबह कर लो, 2 घंटे रात को कर लो। ऐसे कितने दिन?
इसको तो जब भी आपको टाइम मिले, पहले तो जब तक ठीक होते नहीं है तब तक तो इसको कर लो, इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। संडे को तो आप घर पर होते हो तो संडे को छुट्टी के दिन आप एवरी आवर 5 मिनट्स कर लो, वंस ओके। ओनली, दैट विल बी वंस ओनली। ये कंटिन्यूअस है क्योंकि इसको आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए आपको, इन दोनों का नहीं नहीं पर्पज एक ही नहीं, है। फर्स्ट 3 days का तो मैं समझ गया, पानी का और इनटेक। पानी इंटेक का समझ गया, 3 glasses लेता हूँ। हम्म। नेक्स्ट पानी के बाद नेक्स्ट जो बोल रहे, वॉक एंड रेस्ट हम्म। 2 hours इन द मॉर्निंग, 2 hours ये इन हो द गया मॉर्निंग, 2 hours सेकंड इन द टिप। इवनिंग। इवनिंग ये कितने दिन करूँ? ये पानी से शुरू करते हैं ना फर्स्ट डे, ऐसे पानी का 3 दिन तो आप करूँ? चेंज कर रहे हैं, 3 दिन के बाद चेंज कर देंगे, बट जो वॉक एंड रेस्ट है इसको तो लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स हैं, इसको ये डिफरेंस। 2 hours का देना ही देना है, आप जैसे बोल रहे फास्ट नहीं, रिजल्ट के उसके लिए। लिए आप जैसे कभी कभी चेंज कर सकते हैं कि जैसे आप ऑफिस में रूटीन बना लीजिए कि एवरी आवर 5 मिनट्स के लिए वॉक करना है। हाँ तो अगर आप घंटे में एक बार 5 मिनट के लिए वॉक कर सकते हैं कि काम किया, और जब भी आपको टाइम मिला तो 2-3 मिनट, इट नॉट बी एग्जैक्टली 5 मिनट्स, 2 मिनट भी करेंगे तो भी चलेगा। बट रेस्ट नहीं होता इधर। हाँ तो कोई बात नहीं, बेड रेस्ट नहीं होगा तो आप जो भी जिस भी तरीके के काम करते हैं वो करते रहिए बाकी टाइम। ठीक है, वो 1 hour के एक 2, 3 या 5 मिनट वॉक करके फिर बैठ के 1 घंटा ऐसा काम करके पूरा दिन हम्म। निकालता हूँ ऐसा। हाँ, पर और सुबह तो के डेली टाइम में। ऐसे विदाउट चेंज डेली ऐसे ही करता हूँ तो फिर। हाँ, और जो सुबह का है वो जितना भी कर सकते हैं, अगर आप ये कर पा रहे हैं हर घंटे में 5 मिनट का, तो उसको एक एक घंटा तो कर लीजिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात को कर लीजिए, तो उसका इमीडिएट आपको बेनिफिट दिखाई दे जाएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बेसिकली यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ ऑल्सो ना टू कीप योर सेल्फ इन्वॉल्व इन दिस एक्सरसाइज। हाँ तो अभी थर्ड थर्ड भी हो गया सर आपका जो टिप है। और अभी आप वॉक, प्रोटीन खत्म कर लो 2-3 दिन के लिए, सिर्फ 2-3 दिन के लिए, तो उससे आपको ब्लड शुगर का भी आइडिया लग जाएगा। स्टॉप टेकिंग प्रोटीन, हम्म। टेकिंग उसके प्रोटीन बाद में प्रोटीन को थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा मॉडरेशन में लीजिए, कम लीजिएगा। फॉर 3 days। 3 डेज में तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दीजिए बाय टेकिंग राइस एंड वेजिटेबल्स। हाँ उसके हाँ बाद में जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं कोई भी चीज, मतलब दाल या कुछ और भी डोसा वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको मॉडरेशन में रखिएगा, थोड़ा सा चेक रखिएगा कि जैसी ही ब्लोटिंग होगी तो वैसे ही कम कर दो उसको। जैसे मैंने ओके 4 या 5 दिन के ऐसा। लिए प्रोटीन बंद किया हाँ हुआ था, आज मैंने अभी अभी हाँ, प्रोटीन लिया है तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्रोटीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं 3 दिन वेजिटेबल खा के 4th डे एक प्रोटीन लेके उस दिन एक वो दावल वो डोसा खाते। वगैरह ले सकते हैं उसके बाद। अच्छा, उसके बाद आप नॉर्मल मील ले सकते हैं, पर थोड़ा सा वॉच रखिए कि जैसे ही आपका ब्लोटिंग शुरू हो तो आप फिर थोड़ा कट डाउन कर दीजिए। और प्रोटीन कट डाउन हाँ, करना, और ओके। अगर आपको प्रोटीन को एलिमिनेट करने से बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाए तो जरूरी नहीं है 3 दिन करना है, 2 दिन कर लीजिएगा। तो फिर मैंने जो अभी चेंज किया, मैंने डाइट का जो रात में ये खा रहा हूँ बोले ना आपको, जैसे वाटरमेलन सीड्स। ये सब बेकार है, कुछ फायदा नहीं है, बेकार में आपका मतलब खाने का बैंड बजाते हैं, गंदी गंदी चीजें खिलाते हैं। बिकॉज सी, आप अरे इस चीजों को लाइफ लॉन्ग कर नहीं सकते, देन दे विल ब्लेम यू कि आपने किया नहीं इसलिए ठीक नहीं हुए। वो तो पूरा प्रोटीन का फूड ले रहा हूँ मैं, प्रोटीन बार जैसा है मेरा, वो रात में खाता हूँ वो। कि ये वो क्यों एक क्यों और। कारण बोले तो उसका प्रोटीन निकल जाता ना, शुगर पेशेंट को यूरिन में प्रोटीन निकल जाता, उसका सीकेडी प्रॉब्लम होता ना, हाँ प्रोटीन तो निकल गए प्रोटीन, तो। देखो जिसको डायबिटीज होता है उसको बोलते हैं कि सीकेडी होगा, वो डायबिटीज की वजह से नहीं होता, वो प्रोटीन खिला खिला के मार डालते हैं, फिर उसके बाद तो सीकेडी होगा ही होगा, फिर कहते हैं प्रोटीन कम कर दो, तो हाँ पहले बोलना चाहिए बिल्कुल, ना कम आप कर दो। आपकी 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 लॉजिक पे देखे तो मैं कुछ वो प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी इट इज बात आई एम है, ऑलरेडी एक्सेस्ड। अगर हाँ आपके ऑलरेडी 10 साल के बाद आपको किडनी का प्रॉब्लम होना है तो तब बोलेंगे प्रोटीन कम कर लो, तो पहले ही कम कर लो ना। समझ गए सर, मेक सेंस मेक सेंस। तो फिर सर मैं पूरा का ऐसा पूरा करता मेडिकल हूँ। साइंस ऐसे ही है, जितने नैरेटिव बने हुए हैं, WHO सेज कि कम से कम 2 बार ही ब्रश करना चाहिए, तो मैं मेटा पर डिस्कस कर रहा था, आई सेड कि यूएसए में लोग कितनी बार ब्रश करते हैं, इट सेड मिनिमम 3 बार करते हैं, एवरेज एवरेज 3 बार करते हैं। तो आई सेड हम्म, कि देन दे आर ट्राइंग टू कंप्लाई विद WHO, एंड WHO ने गलत बोला है कि मिनिमम, कहता नहीं मिनिमम का मतलब है सिर्फ 2 बार ही करना है। अब बताओ, हाँ अब मिनिमम का मतलब भी मेटा एआई को मालूम नहीं है, इट सेज कि मिनिमम 2 टाइम्स का मतलब है सिर्फ 2 टाइम, मिनिमम का मतलब है यू कैन डू मोर, मोर इज बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मेडिकल साइंस में इतना गड़बड़ है कि मेटा तक को गलत बना रखा है, मेटा से आप
पूछते रहो, वो हमेशा गलत जवाब देता रहेगा आपको। तो फिर वो उसमें ध्यान नहीं देना सर। आप जैसे बोल रहे कि वॉक एंड रेस्ट करता हूँ, वाटर लिमिटेड करता हूँ 3 days का, और मेरा थर्ड जो आपने दिया है प्रोटीन। प्रोटीन वाला, वो भी पहले 3 दिन का कुछ नहीं खाते, 4th डे लिमिट करके लिमिटेशन पे खाते हैं डेली, Yes, अलॉन्ग and विथ if you see वेजिटेबल। some results, consider making a payment also after some days. डेफिनेटली सर, वो मैं करता हूँ उसमें। ठीक है। और कुछ चेंजेस है? You can make as many calls as you feel like, whenever you feel like. नो प्रॉब्लम सर, बट मैं जो बता रहा हूँ, आप 3 दिन के बाद प्रोटीन ऐड करके ये वॉक एंड रेस्ट सब डेली आप ऐसे सबसे ही पहले तो इस्तेमाल 3 दिन करना। के बाद या 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद, जब भी आपको कोई भी चीज दिक्कत होगी या कुछ होगा तो आप फोन करके एक बार डिस्कस कर लो, तो मेरे पास आपका बिल्कुल। रिकॉर्डिंग भी रहेगा, तो मैं आपको उसको भी नेट पर डाल दूंगा। ठीक, आप आजकल पहले आपका आता था यूट्यूब में, अभी यूट्यूब में आपका मैं नहीं बहुत आ रहा मुझे 3-4 साल से सजेशन। बंद किया हुआ है। अभी कल परसों भी किसी ने मैं वो कमेंट किया है कि आप अब क्यों नहीं डाल रहे फीडबैक ऑफ द पीपल। मैं अब एक्चुअली दूसरे किसी काम में बिजी था, तो मैं अब वो काम मेरा चल नहीं रहा, तो आई हैव टू फाइनली फॉल बैक ऑन दिस थिंग ओनली। आई हैव नो तो फिर अदर। अभी टेस्टिमोनीज कुछ दिया गया है क्या? अभी मैं चेक कर ताकि अभी पुराना जैसे अभी कुछ मिलेगा यूट्यूब में पुराना तो टेस्टिमोनीज, यूट्यूब में है ना, स्पेशली 2200 के करीब डायबिटीज। वीडियोस है। हाँ, 2200 के करीब है डायबिटीज का। अभी वो, लेकिन मेरा पहले सजेशंस आता था, आप आजकल नहीं बना रहे क्या? सजेशंस आजकल भी तीन कुछ चार नहीं आ साल रहा से है। नहीं बना रहा मैं, 3-4 साल हो गए मेरे हाँ, को। 3-4 साल हो गया सर, मैं आपसे कांटेक्ट किया पहले ही भी। अच्छा अच्छा। हाँ, तब मैं खुद बात किया मैंने लॉकडाउन के टाइम पे। ओके ओके ओके। फिर अभी लिंक्डइन पे देख के, अच्छा यू आर एक्टिव इन सोशल मीडिया, मैंने सोचा कि यू आर नॉट एक्टिव और समबडी हैज डिनाइड योर एक्सेस और समथिंग बिकॉज यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, ऐसे सोच के मैं छोड़ दिया सर। वो बेसिकली क्या है कि मेरा एक तो मैं कोरा पर लिखता था। कोरा का प्रोफाइल, मेरा जो अकाउंट था वो हाँ, करीब 6 साल पुराना कोरा, हो गया। लेकिन 6 साल पुराना हो गया, मेरा उसने कुछ दिन सम, पहले मेरा बैन कर दिया था वो। हाँ वो बैन का कुछ बात हो रहा था तब, मैंने सोचा ऐसे कुछ निकाल दिया आपका बोल के, मैंने बहुत नहीं, हताश बैन हो हो गया गया था। फिर उसमें मैंने देख के। रिक्वेस्ट किया कि भैया आगे से नहीं करूंगा करके, तो उन्होंने बैन तो हटा दिया, बट मेरा प्रोफाइल डिलीट कर दिया जिसमें मैंने वॉक एंड रेस्ट वो सब लिखा हुआ था ना, वो सारा डिलीट कर दिया उन्होंने। मेरा तो मेरा वो जो आप पुराना जो वॉक एंड रेस्ट दिए वो ऐसे की वैसे रख दिया ना, उसमें कुछ प्रोटोकॉल चेंजेस नहीं है ना उसमें वॉक एंड रेस्ट में? सर प्रोटोकॉल चेंजेस 1:4 वाला बताया आपको, वो वाला चेंज है, और तो कुछ खास चेंज नहीं है। अच्छा, ये 1:4, 1 minute वॉकिंग, 4 minutes रेस्ट। या दिस इज अबाउट 3-4 मंथ्स ओल्ड। हाँ, तो ये लेटेस्ट फाइंडिंग है आपका 1:4। हाँ, इसमें बेसिकली क्या होता है, जब डायबिटीज में ना फिंगर्स नम्बनेस आने लगती है, थोड़ा सा टाइट होने लगती है, थोड़ा सा ग्रिप कमजोर होने लगती है, तो इसमें उसका आप 1 घंटा भी लगेगा, तो लगातार करेंगे ना इसको 1 मिनट 4 मिनट वाला, तो आपको इमीडिएटली फिंगर्स में जो प्रेशर होगा वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे 4 minute रेस्ट में उसका थोड़ा फिंगर्स थोड़ा रिलैक्स होगा। हाँ, वो इमीडिएट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा आधे घंटे में ही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ये 2 hour पर डे इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग वो देखना पड़ेगा मुझे, आप 1-1 ये घंटा कर लीजिए इंस्टेड ऑफ, अगर आप कोई मतलब, एक चीज होता है कि आप 2 घंटे टाइम नहीं निकाल पा रहे, इट डज नॉट मीन यू शुड नॉट डू इट। 15 मिनट 20 मिनट हाँ जितना कर सकते हैं कर लीजिए। बिल्कुल, वैसे मैं छोड़ना नहीं, बस कुछ तो करके हाँ, जितना दिखाना भी होगा। होता है आपको। अभी जैसे सुबह उठे 2 बारी कर लिया, फिर कोई काम आ गया छोड़ दिया, फिर उसके बाद टाइम मिला फिर कर लिया, कोई जरूरी भी नहीं कंटिन्यूअस करें। इवन ड्यूरिंग डे आल्सो इफ आई फाइंड टाइम आई कैन डू दैट। हाँ, मतलब ऐसे बोल। बेसिकली क्या है कि अगर आप दिन में 2 घंटे निकाल भी लेते हैं, और फिर उस 2 घंटे में भी मान लो आपको किसी टाइम कोई कॉल आ गया, कुछ आ गया, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। दो बारी बिल्कुल, सुबह कर लिया, फिर 1 घंटे बाद 2 बारी कर लिया, ऐसे करके कर लो। कोई जरूरी नहीं है कंटिन्यूस होना चाहिए 2 घंटे का। समझ गया सर। कोई भी चीज तो फिर कंपलसरी नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ सर, 3 दिन के लिए तो फ्रूट भी नहीं खाता हूँ और ये प्रोटीन भी कट कर देता हूँ तीन यस दिन यस। अगर आपको ये बहुत ज्यादा टेस्ट का प्रॉब्लम होता है ना, कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा, यू नॉट एबल, यू नॉट नहीं नहीं लाइकिंग। नहीं, वो नहीं नहीं, मैंने एक मिनट एक बहुत मिनट एक गट का मिनट, भी सुन खा तो लिया लीजिए, सर पहले। सुन तो लीजिए। हाँ तो हाँ। आप एक मील स्विच ओवर करके फ्रूट भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब 1 meal आई कैन स्किप एंड हैव सम फ्रूट्स। हाँ, और कोशिश करिए कि जब आप फ्रूट लें तो एक ही फ्रूट लें।
हाँ, 2-3 टाइप का, अलग टाइप का नहीं है। हाँ, मिक्स मत करिए। तो जो भी ले रहे हैं एक टाइप का लीजिए, नेक्स्ट टाइम हाउ जब लेंगे तो वो चेंज कर लीजिए। हाउ अबाउट सलाद सर? सुबह में जब आप जैसे बोल रहे चावल लो बोल के, उसके साथ सलाद ऐड करूँ? चावल के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर जब आपको टेस्ट का प्रॉब्लम है और आपको जस्ट फिल इन करना है तो आप फ्रूट और सलाद ले सकते हैं, या सिर्फ फ्रूट लीजिए, कभी सलाद ले लीजिए सिर्फ। अच्छा, खाली सलाद खा के वो सुबह ब्रेकफास्ट खत्म, उससे खत्म करके दोपहर को राइस लेता हूँ विथ वेजिटेबल। देखिए, आपको खाना खाना है, सलाद में खाना वो नहीं होता, ज्यादा कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, ऑयल भी नहीं होता। तो दिस इज ओनली टू कैटर टू योर टेस्ट बड्स। ओके। कि जब आपको टेस्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो कि आप क्रेविंग्स को रोक नहीं पा रहे हैं, देन यू कैन स्विच ओवर टू फ्रूट्स, बट नॉट अदरवाइज। ओके, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे करता हूँ सर, आप वो 3-4 फार्मूला जो भी आपने बताया, वो पूरा ये 3 दिन करके एक बार टच पे रहता हूँ, आपको फोन करता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट।